Good morning, student. Now, it's the same chapter probability, right? And now let's discuss exercise 3.4. Exercise 3.4 is topic is random variable and probability distribution. So first thing is it is very clear what is the random variable. A random variable is a real value function. A real value function whose domain is the sample space of random experiment. A random variable is a real value function whose domain is the sample space of a random experiment. For example, let us consider experiment of tossing a coin 2 times, right? And now a coin is tossed 2 times. That means now total possible outcome is 4. And first thing now, right, the sample space SS, that is HH, HT, TH or TT. So this is the sample space and total possible outcomes. But random variable denoted by X. And suppose now denoted X is a number of head, right? That means random variable a coin को आप 2 टाइम क्रॉस करो then random variable is 0, 1 and 2. 3 टाइम क्रॉस करो 0, 1, 2, 3. What are the meaning of zeros? Probability of x equals to 0, right? X equals to 0 का meaning that means only 0. X not का number of head. 0 का meaning that means no head. That means both are tail. And it's the same. X equals to 1. What is the meaning of x equals to 1? X equals to 1 का meaning that means only one hand. अब one hand में HT भी हो सकता है TH भी. That is the HT या otherwise TH. Only one hand. Same thing random variable x equals to 2. That means both are hand. अब स्टूडेंट अगर सपोज मेरे को इनकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, ठीक है? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक है, then now find the property distribute करो. Right? X equals to 0 की प्रॉपर्टी 1 पे 2 पे, right? X equals to 0 की प्रॉपर्टी में सेपरेट भी निकाल सकता हूँ, but X equals to 0 का मतलब नो है, यानी कि all are tail. That means is a favorable. 0 का मतलब नो है, right? तीनों में है. Both are tail is only favorable 1 and total is 4. That is a 1 by 4. This is the property of X equals to 0. X equals to 1 की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, that total possible outcome is 4, but favorable HT and TH there are two favorable cases, that is a 2 by 2, and all are had, that is also 1 by 4. So student हम इस आंसर को इस तरीके से लिखते हैं, x random variable denoted by xi and p of xi. This is the probability distribution. So random variable 0, 1 and 2, and now the probability distribution x equals to 0 probability 1 by 4, 2 by 4 and again 1 by 4. आप टोटल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करो, सम हमेशा 1 ही आएगा, राइट? इसको इंक्रीज था रैंडम. नाउ सर अनदर आपकी एक्सरसाइज के अंदर 13.4 में, नाउ सर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 and then as a first question state which the following function are not probability distribution of random variable. You will listen पे हम सब जानते हैं किसी भी इवेंट की probability between 0 to 1, right? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में राइट रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2 probability है 0.4, 0.4, 0.2 इन सब का समेशन अगर 1 के इक्वल आ रहा है, दिस इज probability. yes 0.4, 0.4 into 1 probability distribution 1 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट इज अ probability distribution. बट सेकंड इवेंट में रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2, 3, 4 है, probability distribution समेशन 1 आ रहा है, बट एक probability नेगेटिव. और कभी भी कोई सी भी इवेंट की प्रॉपर्टी होती है वो बिटवीन 0 to 1 होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है, तो दिस इज नॉट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सेम इज द थर्ड प्रोसीजर, राइट? ये थर्ड क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम, बट प्रॉपर्टी इज रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है बट प्रॉपर्टी नेगेटिव हो सकती है. सो थर्ड क्वेश्चन में समेशन 0.628 1.9 आ रहा है, दिस इज द लेस देन 1. कभी भी किसी भी इवेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो बिटवीन 0 to 1 होती है, सो दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज नॉट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड थर्ड में समेशन इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो दैट इज नॉट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, an uncurved 5 red ball and 2 black ball, right? And 2 balls are random.
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दोनों के अंदर ही हमें एक ही चीज पूछी है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए एक बैग है मेरे पास, एक अर्न है, अर्न का मतलब होता है दैट इज थैला, राइट। सो उस अर्न के अंदर मेरे पास में रेड बॉल 5 and black ball 2, and in total 7 balls. So you want to do what 2 balls are randomly drawn, and let the x number of x denote कर रहा है number of black ball, number of black ball को denote कर रहा है x, and what are the possible value of x। अब आपको मालूम है, आपको दो ड्रॉ करने तो रैंडम वेरिएबल 0 1 2 तीन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट होता है। 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब आपके सामने x इक्वल टू 0 का मतलब दैट इज x नोट करना, हमने बोला 0 का मतलब नो ब्लैक बॉल, इसका मतलब बोथ आर रेड बॉल। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा? दैट इज ओनली वन ब्लैक बॉल, तो वो ब्लैक रेड भी हो सकती है और रेड ब्लैक भी हो सकती है। और x इक्वल टू 2 का मतलब दैट इज बोथ आर ब्लैक बॉल, दैट इज b, राइट। सो स्टूडेंट दिस इज रैंडम वेरिएबल 0 1 2 and RR, VR or RB or PP. Say question number third, let x represent the big difference between the number of head and number of tail. X denote कर रहा है difference, किसके difference को? Number of head and number of tail के difference को। अब number of head और number of tail का difference है x, and now when a coin is tossed 6 times, right, और coin कितने टाइम toss किया? 6। अब स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज ये है कि एक कॉइन को 6 टाइम टॉस किया और मैं पूछा व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉइन को आप 6 टाइम टॉस करते हो, लेकिन आपका x जो है वो डिनोट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड टेल, राइट। हेड और टेल के डिफरेंस को, वो x माइनस t प्लस t माइनस h हो सकता है, राइट, दैट इज होल मोड। x डिनोट कर रहा है। अब मैंने सपोज करो कि अगर 6 टाइम अगर हेड आता है तो टेल इज 0 टाइम, देन डिफरेंस कितना हुआ? 6 माइनस 0, दैट इज 6। मॉड इसीलिए कहा है कि 6 माइनस 0 या 0 माइनस 6, नो प्रॉब्लम, वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेम अगर मैंने 5 टाइम हेड आता है तो 1 टाइम टेल आएगा, डिफरेंस निकालना है, दैट डिफरेंस इज 4। सपोज अगर 4 टाइम हेड एंड 2 टाइम टेल्स, दैट इज डिफरेंस 2। सपोज 3 टाइम हेड 3 time tail, difference is 0. Suppose 2 time head and 4 time tail, that is the difference is 2. Suppose 1 time head and 5 time tail, that is the difference is 4. Suppose 0 time head and all time tail, that is the difference is 6. तो मेरे पास में random variable क्या आ गया? Random variable x is 0, 2, 4 and 6. There are 4 random variables, correct? Now is the question number 4. Find the product distribution जो मैंने अभी solve कराया आपको, right? Same question number 6. Find the product distribution of number of success in 2 tosses of a coin, right? आपके सामने है find the product distribution of number of success. इसको denote कर रहा है success in 2 tosses of a die where success is number is greater than 4. अब number is greater than 4, यानी आप सबको ये मालूम है कि हम एक डाई को कितने टाइम क्रॉस करें? 2 टाइम क्रॉस करते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है। लेकिन सर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले एक सिंगल डाई से सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, सक्सेस एंड लॉसेस। एक सिंगल डाई के अंदर नंबर इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन नंबर, टोटल नंबर 6 होता है सिंगल डाई में, लेकिन ग्रेटर देन 4 5 and 6 there are 2 number, that is the 1/3 is the probability of success। सक्सेस किसको लिया अपन ने? राइट, नंबर इज ग्रेटर देन 4 and not success, that is a not की probability, failure की probability 1 minus 1/3, that is a 2/3। अब आपके सामने क्वेश्चन में कि ये है कि डाई को 2 टाइम टॉस करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू 0 से। x इक्वल्स टू 0 का मतलब x नॉट कर रहा है, नंबर इज ग्रेटर देन 4, दैट इज अ सक्सेस को, राइट। x इक्वल्स टू 0 का मतलब नो सक्सेस है, बोथ आर फेलियर, और फेलियर की probability is given 2/3, but then 2 times, that is a 2/3 into 2/3, that is a 4/3। सेम x इक्वल्स टू 1 की जब हमने प्रॉपर्टी फाइंड करी तो दैट इज अ 1 का मतलब दैट इज अ 1 सक्सेस, यानी कि वो फर्स्ट रो में भी सक्सेस होता है और सेकंड रो में भी सक्सेस, फेलियर मिल सकती है। अब सक्सेस की प्रॉपर्टी आपके सामने 1/3 है और फेलियर की प्रॉपर्टी 2/3, बट देयर आर 2 केसेस दैन ट्वाइस, सो इज अगेन 4/3। देन x इक्वल्स टू 2, दैट इज अ बोथ आर सक्सेस,
और both are successive property. So 1 by 3, that is a 1 by 3 into 1 by 3, there are 2 lines, so that is a 1 by 9. So this is it. Same इसका second part. And now same question number 6, from a lot of 30 bulb, from a lot of 30 bulb, then which are include 6 defect. आपके पास 30 bulbs हैं, इसमें से 6 defective हैं, and a sample of 4 bulb draw, और आपको 4 bulb draw करते हैं, right? And randomly with replacement. You know student, with replacement मतलब अगर आपने first bulb draw किया तो उसको रखने के बाद ही दूसरा, with replacement का मतलब होता है sample space not changes. अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या आपके सामने 30 bulb है, 30 में से 6 are defective, right? Question number 6, this is very very important question, right? 4 bulb draw करने, 4 bulb draw करने, और x denote कर रहा है number of defective bulb, number of defective bulb, right? Number of defective bulbs को डिनोट कर रहा है x. अब x नंबर ऑफ डिफेक्टिव bulbs को डिनोट कर रहा है, और आपके सामने रैंडम वेरिएबल 4 बार ड्रॉ करना, तो रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 4. सबसे पहले आप अगर x इक्वल्स टू 0 की प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, इसमें 0 का मतलब नो, 0 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव bulb को, 0 का मतलब नो डिफेक्टिव, राइट? अब आपके सामने ये है कि सबसे पहले डिफेक्टिव होने की प्रॉपर्टी क्या होगी? टोटल 30 bulb है, 30 में से 6 are defective, then 6 by 30, that is the 1 by 5. This is the property of defective, and property of non-defective dash, not defective, non-defective, then is total 30 bulb, but non-defective आप डायरेक्ट नॉट की प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, 1 minus 1 by 5, that is 4 by 5, या अदरवाइज आप ये सकते हो 24 upon 30. अब x equals to 0, x नॉट कर रहा नंबर ऑफ डिफेक्टिव bulb, x equals to 0 का मतलब कोई डिफेक्टिव नहीं है, राइट? दैट मींस फर्स्ट चारों के चारों bulb नॉन डिफेक्टिव. नॉन डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी 4 by 5, but there are 4 bulb drawn, 4 by 5 into 4 by 5 into 4 by 5, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 64 4 जा 256 upon 625. Same, x equals to 1, x equals to 1 का मतलब only one defective. अब भाई only one defective, तो that is first bulb is defective, other 3 is not defective. But short first 3 defective होगा, right? आपके सामने x equals to 1, one defective का मतलब only one defective. अब वो first दो निकले second दो, तो how many cases? So there are 4 cases कि first bulb है D, सेकेंड में आपके सामने डिफेक्टिव निकल सकता है सेकेंड थ्रो में, राइट? इज अदर केस थर्ड में निकल सकता है आपके सामने, राइट? इज अदर केस फोर्थ में निकल सकता है, राइट? एक बल्ब हो सकती, तो मतलब आपके सामने एक डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी इज 1 by 5, बट नॉट डिफेक्टिव की 4 by 5, 4 by 5 और 4 by 5. But there are 4 cases into multiplied by 4, that is again same 256 upon 625. Same x equals to 2 की प्रॉपर्टी, x equals to 2 का स्टूडेंट मीनिंग जो होता है that is a 2 defective. अब 2 डिफेक्टिव होंगे तो आपके सामने केस कितने होंगे? भाई 2 डिफेक्टिव है तो 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे, तो आपके सामने केस कितने होंगे? कितने केस बनेंगे? चलिए चेक करते हैं. First thing, now write all our DD. Right? 1 2 3 4 5 and 6 cases. 6 cases का मतलब क्या कि भाई आपके सामने 2 डिफेक्टिव है, और आपके सामने अगर 2 डिफेक्टिव है तो वो 2 डिफेक्टिव फर्स्ट हो सकते हैं, लास्ट हो सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि सब बिटवीन 2 डिफेक्टिव, तो हो सकता है उल्टा क्वेश्चन, या फर्स्ट एंड थर्ड हो सकता है, तो सेकंड एंड फोर्थ हो सकता है. सो देयर आर 6 केसेस. आपको मालूम है कि 2 डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी 1 by 5 into 1 by 5, 2 डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी, बट नॉन डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी 4 by 5 into 4 by 5, and there are 6 cases.
96, right? Upon 625. Same is the x equals to 3. X equals to 3 का मतलब there are 3 defective, right? 3 defective, that is the same first वाला कि अगर आपके सामने 3 डिफेक्टिव है, एक नॉन डिफेक्टिव है, तो उस कंडीशन में कितने केस होंगे? 4 केस होगी, राइट? आपके सामने x equals to 3 का मतलब 3 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव का मतलब 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5, 3 डिफेक्टिव, and 1 is the non defective, that is a 4 by 5. But there are 4 cases, so then is 4 4 is 16 upon 625. Same, x equals to 4, that is the all are defective, that means all are defective, d, that is 1 by 5 into 1 by 5 into 1 by 5 into 1 by 5, that is a 1 upon 620. Right? So student, ये मैंने आपको आज जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन पर 7 क्वेश्चन भी पढ़ा है, उन क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको फर्स्ट 6 क्वेश्चन में केवल आपको ये बताया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोडक्ट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।